you started software, then you have opened these two toolbars. This is first section. Second section is your overlay section. Here you have n number of overlays. You can just scroll it down and pick any whatever overlay you want. So यहाँ पे वो एक चीज है. Apart from this, ये जो palette बोलते हैं in AutoCAD language, this is a palette. So ये palette में we have three sections. So this is a draw section. This is a modify section. So if you want to draw anything on chart manually, so you can use these things like creating arc or circles like that. So you have these options available in this palette. So in all, we have three palettes. First one is Fortune Plus. Second one is draw. Then it's another is modify. So normally draw or modify का use मैं नहीं करता हूँ क्योंकि over the period I know the commands कि what commands can be used. जैसे कि अभी मुझे circle draw करना है. So normally you can just go here and go to this draw palette and click here and you can draw circle, something like this, right? But normally what I do, I just use the command C space. Now I can draw a circle here. So this is little bit fast. So maybe it is little bit time consuming because you may not know all commands. So जैसा आपका हाथ बैठेगा, slowly you will be okay with that. So majorly we have this Fortune Plus section. You can just click here and go into another palette. So this is a Fortune Plus palette, and we have a number of overlays, as I said. So this is the second part, and third part is this section, left side section. So once you go to the left side, something like this pops up. Now this is little bit tricky how to open charts again. So you have to go to this open section, just click here, go to the recent section and click on this pop up, right? Now you have something like this. So you have to go to the left side, go to the recent section and click here. So I'll just close and again show you how to do it. See, I started Fortune Plus. Then I'm opening toolbar. Internet should be connected, otherwise it will not open. And if internet is not connected, then close this software, start your internet and again try this. Then it will work, right? So अभी मैंने OK किया. Now this toolbar is activated. I can put it on this the ribbon. Then I can click another icon, toolbar icon, and this I am shifting. तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा इनिशियल स्टेजेस में, वो इधर उधर चला जाएगा. So no problem, right? So this is the overlay section, and now again I am going to the charts. So see, I can't see any charts here. Now I have to click to this open, go to recent and click this section. Now I have a chart folder, right? C drive charts. You have to double click this. Once you double click, you have n number of folders available. Initially, you should be looking at only Nifty, Index, and A to Z. So Nifty, it includes 50 charts of Nifty, right? Then Index, whatever you want to plot, no problem. Then A to Z, we have already plotted so many scripts. And whenever you want to add any another script, you can definitely add that. That is a process. You need to know how to add. That is a different process. But simply, when you click charts, double click charts, it will show something like this. Then there are three major important parts: Nifty, Index, and A to Z. So if you want to check any chart from Nifty, just double click Nifty. You have ये इस तरीके से open हो जाए, expand हो जाएगा, right? So you have so many scripts. Now you can just click here and type the name and you can find. Otherwise, you can just scroll down and you can find. So there are two ways. So just to open up, say for example, Coal India, I'll double click Coal India. Now Coal India chart is opened, right? So now here we have 4 different charts. This left side first chart, this is a trading day chart. Means normal end of the day chart where every candle is of 1 day, right? So if you zoom in, you will find that there is a date written and the rates are also written. So you can zoom in and zoom out and check wherever you want to go. So again, zoom in and zoom out is a little bit tricky and a little bit complicated. Zoom in and zoom out.
but once you start, you should only use mouse, scroll mouse, right? There are other options where you can zoom in and zoom out charts, but always use mouse. So can you see this cursor on my screen? This is the cursor. Can you see it, Debo? Yes, sir. I can see that. ये जो cursor है, you have to keep the cursor wherever you want to see. Suppose I want to see this top, I can take my cursor here and then zoom in, zoom in, zoom in. Scroll mouse से हमको zoom in करना है. So this is the way how you check. Otherwise, see, आप अगर यहाँ देख रहे हैं, मेरा cursor यहाँ पे, and I want to check this top. See, my cursor is here. If I zoom in, I'll go to that part. So this is little bit tricky. You have to be comfortable with this. You can use 2-3 times and it will be okay. So I'm telling you where you will face the problems. So zoom in, zoom out definitely will be a problem, right? So initially I'll tell you we have 4 charts. This is a trading day chart. Means every day the candle is plotted. Say 2nd September, then 3rd September, and so on. So every day one candle. Now, if I zoom out, then I can see this calendar day chart. This is the calendar day chart, wherein Saturday, Sunday offs are marked by space. Saturday, Sunday or holidays, it won't plot any candle, but it will shift next day. So it is a natural chart, right? So 365 days it will be plotted, even if there is a market or not market. So this is termed as a calendar day chart. So this is also a very useful chart. This is also a daily candle. See, 2nd September, 3rd September. So we have only Saturday, Sunday gaps here. Got it? Debu, clear यहाँ तक? हाँ sir, हाँ. Clear है. See, now if I zoom out, I can see weekly chart here. This is a weekly chart. At the bottom of every chart, it is mentioned what is the time frame. So this is a weekly chart. You can just zoom in, zoom out, and check. And जो weekend का Friday होता है, that date will be printed here. Right? Weekend का जो date होगा, जैसे Friday को weekend हो गया, तो Friday's date will be printed here. So like that, right? So this is a weekly chart. If I zoom out, then I can find monthly chart here. Right? This is a monthly chart. One candle means 1 month. So it is like this. If you want to see multiple charts on one single screen, we have option here. This is the option. If you click and I want to check, for example, 2 charts at a time, means I want to check daily as well as weekly. So I can click 2 verticals, something like this, and I can say, okay. See, now I can zoom out in 2 sections. So this is my daily chart. This is my daily chart. And if I want to check weekly, see, this is my weekly chart. So I have. सर ये ऊपर का पोर्शन दिखा नहीं, मतलब वो स्क्रीन में ना पूरा नहीं आ रहा है, वो ऊपर का जो यहाँ पे देखिए, ये अपना जो टूल बार ओपन किया, वहां पे देखिए डिस्प्ले रिपोर्ट लिखा हुआ है, राइट? ओके ओके सर, राइट? जो ऊपर का टूल बार ओपन किया था, उसके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है डिस्प्ले व्यू पोर्ट्स करके. ओके ओके. ये अगर क्लिक करते हैं तो यू कैन कस्टमाइज हाउ योर स्क्रीन कैन लुक लाइक, राइट? तो इनिशियल स्टेज में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स एक्स्ट्रा, इसका फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगा, बराबर ना? बाय ट्रायल एरर ओनली ये चीजें होगी. अभी मैं फिर से सिंगल कर रहा हूँ. दिस इज अ सिंगल व्यू पोर्ट, मींस आई डोंट वांट एनीथिंग. सो दिस इज माय सिंगल स्क्रीन, राइट? सो ये एक चीज है. एक कमांड आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने गलती से इनिशियल स्टेज में ये होगा, मैंने जूम इन कर लिया, नाउ माय स्क्रीन इज ब्लैंक एंड आई डोंट नो वेयर इज माय चार्ट. सो एट दिस टाइम यू कैन जस्ट enter Z, enter A, enter. So this command you have to remember, Z, enter, A, enter. So now my all charts will be in one screen. Wherever I want to zoom, I can zoom, right? So if I want to check for a weekly, I can go to the weekly chart like that. So Z, enter, A, enter will be of useful, क्योंकि आप काम करते हैं वो दिक्कत जरूर आएगी, right? So ये है कि हम बेसिक चार्ट ओपन करें. ऊपर में टूल बार्स, राइट साइड में ओवरलेस, लेफ्ट साइड में चार्ट्स, ये चीजें इसमें हैं, राइट? सो यहां तक कि एक स्टेक खत्म होगी ऐसा अपन समझ के चलते, क्योंकि देयर विल बी ऑलमोस्ट 86 प्रोग्राम्स. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. मैनुअल में यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी हेल्पफुल, बट मैनुअल के बाद में भी वी हैव एडेड सो मेनी थिंग्स, सो मैनुअल मे नॉट बी अपडेटेड. तो बहुत सारी चीजें रहेगी. इसके रेफरेंस के लिए बुक्स जो भी लगेंगे, यू कैन आस्क मी फॉर दोज बुक्स, बट यू हैव टू आस्क मी फॉर दोज बुक्स. कि ये सपोज
for example, we have say for example we have say this where is this mirror part? Just I'll tell you mirror. Where is mirror? Mirror यहाँ नहीं दिख रहा, just a second. Let me hide. Yeah. सर ऊपर का ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहा आपका सर? कौन मतलब सा वो सर? स्क्रीन जूम हो गया है, बट अच्छा। ऊपर के जो ऑप्शंस है ना वो चीज नहीं आ रहे सर। देखो। हाँ, अभी आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। अब देखिए। हाँ। ठीक है। अभी नहीं, अभी मतलब स्क्रीन जूम्ड है, बट ऊपर का जो मैं हाँ थोड़ा हाँ सा ऐसे नीचे कर लेता हूँ अगर कुछ गॉट इशू इट होगा। गॉट इट। ठीक है? हाँ राइट। तो अब इसमें से एक ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी ट्रैक करके नीचे लाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जस्ट सेकंड, ये वाला दिख रहा है? व्हाट इज दिस ऑप्शन? ये है लेयर मैनेजर। लेयर मैनेजर मींस आप चार्ट पे यू आर गोइंग टू अप्लाई मे बी से 10-20 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, तो चार्ट पे मेस हो जाएगा, बराबर मेसी हो जाएगा। एवरीवेयर देयर विल बी लाइंस, सो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सो here with the help of layer manager you can select only those studies which you want. Suppose this is a ABSS, we term this as a ABSS. So right now if I don't want this, I can just go to this place. This is the ABSS. I can just switch off this light, yellow light I have to switch off. Now if I click outside anywhere, this is hidden, gone into hidden mode, right? And whenever I want this to be open, I can just click here and I can just switch on this light. So this is also an important part. So I have switched on light. Now my जो भी मैंने study किया था, I can reopen that study. So this is important sections. You may consider toolbar is one part, overlays is one part, this section of charts is another part, and on off of layers, this is the layer manager. So you can just drag it and keep it anywhere you want. So this is my layer manager. So whatever study, suppose I have applied maybe supply zone here. So I can just click here and I can just say this is a demand supply zone layer. I can just click here. I can just make it invisible, right? So whatever I want, I can just make it visible and invisible by this light only. इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया, यहाँ कहीं हाथ नहीं लगाना है, आपका काम है सिर्फ ये येलो बल्ब्स, right? Suppose this is EWR means Elliott wave ratios. So if I want Elliott wave ratio, I can just click here and I can check wherever my ratios are, right? So mainly toolbar, overlays, charts, and layer. This will be the main sections rather, right? So ये एक चीज है इसमें. And now I can go on explaining few other things also. सर व्यू पॉइंट वाला सर, एक मिनट, व्यू पॉइंट वाला भी उधर था ना ऊपर में, अब जो दिख रहा था? हाँ डिस्प्ले, हाँ ये भी बाद में आएगा। ये है और ये सिंगल करने के लिए। तो इसका इनिशियल स्टेज पे बहुत यूज नहीं है, लेटर ऑन यू कैन कस्टमाइज योर स्क्रीन एज यू विश, राइट? तो ये मेन पार्ट हो गया, राइट? सो लेट मी नाउ टॉक टू अमर आल्सो, उनको भी कुछ डाउट्स थे। अमर नमस्कार, आपका माइक ऑन कर लेना भाई। हाँ माइक ऑन। मुझे थोड़ा सा वो बताना, अपना 45 डिग्री वाला। 45 डिग्री, ओके I'll explain that part. 45, ओके चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर ले, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले। अभी मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑपरेशन के लिए बेटर रहेगा, राइट? थोड़ा सा ऊपर का मिसिंग रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्ट। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस वो मैं पहले देबू को भी बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है वो सबसे पहले मैं क्लोज कर लेता हूँ फिर से सॉफ्टवेयर, राइट? सो देबू, प्रोसेस इज दैट दिस इज द कोर ट्रेड। अभी आपका एक्टिवेटेड नहीं है बिकॉज ऑफ संडे। दिस इज द कोर ट्रेड, आपके स्क्रीन पे भी है, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, कोर ट्रेड। इसको अभी आपका चलेगा नहीं क्योंकि एक्टिवेटेड नहीं, पर मैं कैसे चलाना है वो मैं बता देता हूँ फिलहाल, और उसके बाद मैं और मैं हेल्प कर दूंगा एक बार जब एक्टिवेट हो जाएगा। सो कोर ट्रेड को मैंने डबल क्लिक किया, ये ओपन कर दिया मैंने कोर ट्रेड। कोर ट्रेड ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में ये आइकॉन है जिसको बोल रहे हैं ईओडी अपडेट। यू हैव टू क्लिक हियर एंड जस्ट अपडेट दिस पार्ट, दैट्स इट। इट विल अपडेट योर डेटा। यहाँ से इट विल टेक 1 or 2 minutes मैक्स, और उसके बाद में अपडेट है। माय डेटा इज ऑलरेडी अपडेटेड, सो नाउ देयर इज अ पॉपअप डेटा अपडेट ऑपरेशन कंप्लीट। सो अमर, आपके यहाँ पे ये इशू था,
हमारा आवाज आ रही? हाँ हाँ आपके यहाँ पे ये जो पॉपअप आया है, ये पॉपअप हिडन था, यानी कि बाजू में था, मे बी इसीलिए इशू आया था, अदरवाइज देयर वाज नो इशू एट ऑल। नहीं, हो गया, ठीक हो गया, अभी कल अपडेट किया मैंने। हाँ हाँ, तो ये कहीं हिडन में रहेगा, तो आपको यहाँ चेक करना है। नॉर्मली अगर अपडेट कर रहे हो, ओपन ही कर रहे हो, कहीं आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो ये अपडेशन के बाद में दिस विल बी द पॉपअप, देन जस्ट क्लिक ओके, यू कैन जस्ट क्लिक क्लोज हियर एंड यू कैन जस्ट क्लोज कोर ट्रे। So this is how you have updated your data. You have to do it daily, or if you skip, no problem, यानी कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप कर रहे हो तो it will automatically update from the last updated data. ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, हाँ क्लियर है। ठीक है, so first step is to update data. So you have updated data. Now the second step is go to Fortune Plus. As I told you, you can click this toolbar, it will be on. Pop-up will come, just say okay, toolbar will open, drag this toolbar to this place, then click to another toolbar, then just say okay, you can also drag this to wherever you want. Now your software is open, your data is updated. Now first job is to plot, means update all charts. So once you update your data, your charts in Fortune Plus doesn't get updated automatically, right? So that is a problem which happens automatically in most of the softwares. But since we are printing charts, see, there is a difference between normal charts and what we are doing. We are printing charts on one sheet, maybe our graph paper. We have a graph paper and every day we are printing that chart on that graph. So that's why updating of charts is important. So you updated data, now you have to update your charts, right? So now this is the updation tool. P, its icon is named as P. It is a plotter. So you click here, this pop-up will come. Now, this is the auto plotting of all favorite scripts. Maybe हमने study लगाई है, वो सब all the favorite scripts will be plotted. So here you have to click. It will up and will say how many scripts will get updated. So it says now 5 and 4 scripts will get updated. So I'll say okay. And even if you want to stop this operation here itself, then you can say no. But once you say yes, will plot 514. So you maybe sometime what happens, your laptop is not charged, and ये जो issue है, ये issue you have to take care. Say yes, it will take next 10 to 15 minutes to update all charts, because it has to open every chart, then it has to update TD, CD, weekly, monthly, all 4 charts, then close that chart and open the next chart. So this is the process what is going in the background. So it will definitely take a time. So you have to be prepared. Once you say yes, it will take next 10 to 15 minutes. So अमर ये क्लियर है? आई होप ये आइकॉन शायद आपके लिए नया होगा, जो अपन पहले अपडेट स्क्रिप्ट्स करके जो ऑप्शन था वही ये ऑप्शन है। हाँ, ये क्लियर है। यहाँ पे जाने के बाद में ये पॉपअप करेगा, ये इसी वक्त while updating you have to be very careful that you are not using other softwares which are linked with the existing data. ISS EOD is our folder where data is stored. C drive ISS EOD, this is our data folder. If you are using ISS EOD, suppose for example I am having my AmiBroker open, I am checking my charts somewhere here, and at the same time I am trying to plot, then it will create problems. So be careful that all other softwares are closed, right? So I'll close this software plot, and I can just click here and all the scripts will be plotted, updated, right? So यहाँ तक क्लियर है? देबू आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होगा, 100% नहीं है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ अमर यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब थोड़ा ध्यान देना है शिवांगी, अमर और देबू, आपको अभी ध्यान देना है थोड़ा सा, मैं जो कर रहा हूँ। आपको चाहिए था, आपको जो इश्यू था वो था कि हम 45 में कैसे चेक करें। सी पहला चीज मैं क्लियरली बता दूंगा, n number of things, but hot selling cake बोलते हैं ना, hot selling cake जो होगा that is maybe a 45 डिग्री पे हमारी कौन-सी स्क्रिप्ट पहुंच रही है, ये हमें ढूंढना है, right? So I'll show you one example. maybe कल ही मैंने कोई एक दिखाया था, but अभी number of scripts are there, but maybe I'll just tell you just a second.
I think let's have a Titan also. Titan, just a second, I'll check. कि क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए. Honestly मैं सिर्फ बताऊं ये क्लिक करो तो it makes no sense. I'll just explain in short कि क्या होता है. Think from the brain. So let's have a yes. Sorry, FDC in calendar days, I think it is 145. Yes, FDC. Let's check FDC. So this is FDC. Now, ठीक है. ये थोड़ा सा मैं एकदम ऐसा रोजी दिखा देता हूँ पहले इनको कि रोजी किस तरीके से दिखता है. So I think IFB was a rosy exact touch and go. So I'll show you IFB. IFB came down and it was a big bar, no sir? No, it came down here. This is a reversal. Right. इसके ऊपर long था 927 about. Correct. So IFB I entered at 935 and I as per our rule above 927 we need to check for a filter. I entered exactly at 935. So today it is at 1061. So ये जो चीज एक्सप्लेन करना है वो उसकी तरफ ध्यान रखना है नए लोगों को, जैसे अमर को, शिवांगी को और देबू को. अभी के लिए तो डिलीट कर देता हूँ. Maybe it will get problem in my data, but let it be. No problem. I will explain. ताकि आपको समझने में आसानी होगी मैं जो बोल रहा हूँ. First and important thing is x and y axis के सेंटर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो that will be our 45 degree angle, and 45 degree is important because where price meets time. तो ऐसी जगह जहाँ पे प्राइस और टाइम मीट बाकी कहीं पे हमको देखने नहीं मिलेगा. मैंने बाकी के जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तब हमें वो चीज नहीं मिलती है. तो इसीलिए मैं खाली हॉट सेलिंग वाला केक आपको दिखा रहा हूँ. बाकी n number of things are there. But suppose consider I have this as my important low. See, I can visualize even this one also. No problem. This is also almost the most important low, but this is a higher low. Suppose consider अगर ये एक important low दिख रहा है तो what is my job? My job is to click here. See, देखिए अमर ध्यान रखना ये अप डाउन और ये 45 ये तीनों के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ और मोस्ट यूजफुल एंड एक्सलेंट रिजल्ट्स है, तो आप इसको केयरफुली देखिएगा. See, I have this as my important low. Maybe this or this. I have to go to this up. You are not going to use this 45 degree angle. ये सिर्फ हमारे checking whether I should apply here or not apply like that. So ये वाला आपको यूज करना है. Apply your 45s to as many important lows as you want. So I have just applied. ये जब आप अप्लाई करते हैं तो it will ask you if it is a fresh script where 45 is not applied on that script, then at this time it will ask you whether I should add this script into the favorite or not, right? So यहाँ पे करोगे तो पूछेगा फेवरेट में ऐड करना है या नहीं करना है. What is meant by adding into favorite? If you want to track this 45 every day, means क्या होगा, अभी जैसे आपने 45 लगाया, now script is somewhere here, but you don't going to come to 45. So at the back end, it has to track whether how much difference there between 45 and your current location. So whenever this difference comes to almost zero, then you should get alert that this script has reached to the 45 degree. So this is the actual logic behind Dream 45 project. So now I have applied. It will ask you whether I should add in favorite, and this say yes and okay. That's it, right? Now, whenever this script comes to this zone, जैसे ये script यहाँ पे पहुँचा, so we will get alert here. अभी तो ये script ऊपर चला गया, but now I will show you how it can show. IFB. See, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि मैं आपको एंगल बताता हूँ कि हाउ टू चेक दैट. सी व्हाट इज द नेम नंबर ऑफ माय एंगल. इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं हम वो देखिए. दिस इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. दिस इज अ TD मीन ट्रेडिंग डे चार्ट. अप मींस अप 45 एंड एंगल नंबर 2182. अपन ने हर एंगल को नाम दिया. क्यों? ताकि आपके अगर बहुत सारे एंगल्स लगे हुए तो आप एक्चुअली कौन से एंगल के बारे में हम सोच रहे हैं वो यहाँ पे दिखेगा. सो दिस इज 2182.
राइट? सो 2182, राइट? देखिए 2182 ये एंगल के बारे में हम बात करें. सो whenever the script comes back to 2182 एंगल, this percentage difference will be 0. यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखिए. मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले सबसे पहले तो सब 45 निकाल देता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी पड़ेगा. डिलीट. I have deleted all 45 degrees from this chart. Okay. So अभी ध्यान रखना है अमर. हाँ ध्यान रखना है, ये अप एंगल में लगा रहा हूँ, देखिए आपके सामने, राइट? ये मैंने क्लिक किया. See, it is asking me whether I should add to the studies or not. Yes, I have added to Dream 45. Okay. Now the script is into favorite. और आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो स्क्रिप्ट कहाँ पे पहुंची हुई है. तो इसका मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको. See, now I have 2182 angle. This 2182 angle. यहाँ पे अमर ध्यान रखना. डेबू, it will be little bit complicated immediately for you, but I'll explain to this to अमर. अमर, ये जो प्लॉट प्राइस दिख रही है, ये है ये प्लॉट प्राइस जहां से मैंने 45 लगाई. ओके. हाँ ये जो है टुडेज हाई लो, मींस आज की कैंडल के हाई लो का एवरेज प्राइस क्या है. तो आज की कैंडल जहां पे भी है वो ये. ओके. अब मेरा 45 अभी जैसे ये स्क्रीन यहाँ पे पहुंची हुई है, मेरा 45 यहाँ पे है. ठीक है मैं. तो व्हाट इज द टुडेज 45 डिग्री लेवल? तो टुडेज 45 डिग्री लेवल इज 899, राइट? प्लस 1D 45 मींस क्या होता है, कभी कभी आपको नेक्स्ट डे, अभी जैसे एक आधा स्क्रिप्ट पहुंच रहा है 45 पे पहुंचा नहीं है, सो आपको पता होना चाहिए कि कल का 45 कहाँ पे है, यानी कल मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे स्क्रिप्ट खरीदनी है. सो दिस इज प्लस 1D 45. बराबर है? ये क्लियर है अमन? हाँ क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं नहीं ना? ठीक है ना? सो दिस इज प्लस 1D 45. This is the difference between 45 and your current price. This is the percentage difference between your current price and 45 degree, right? तो यहाँ पे जब ये percentage 0 होगा, that means your script is at 45. So we have to watch out for this percentage difference. बाकी के कॉलम नहीं भी देखे तो भी चलेगा, but most important part is this. So percentage difference जहाँ 0 आ गया, you know that script is at 45 degree level, and now you can catch that script, right? So Amar, यहाँ पे, but once you apply 45 degree from this point, you have percentage difference from 45, percentage difference from 2/1, percentage difference from 1/2. So ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. इसमें सॉर्टिंग होता है क्या उसका? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी करके दिखाता हूँ. देखिए ये मैंने अभी 1/2 एंगल लगाया नहीं, बट ये ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1/2 एंगल कितना दूर है. सो एक आधा स्क्रिप्ट में आपने 45 लगाया और वो स्क्रिप्ट बाद में नीचे आके यहाँ टच कर रही है, तो अगेन यू कैन कैच दैट स्क्रिप्ट. तो हमारे लिए ये ब्लू कलर के जो कॉलम्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ये जो डेज है ये है 269 डेज फ्रॉम दिस 45 डिग्री. तो इसका फिलहाल जरूरत नहीं आपको. तो from the trading perspective, you need to pay attention to this percentage difference column, and if you want you can pay attention to 1/2 also, but most important will be percentage difference. ठीक है? I hope यहाँ तक क्लियर है. अब यही एंगल अगर हम वीकली पे लगा लेते हैं, सपोज ये एंगल मैं वीकली पे लगा रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे वीकली पे लगा रहा हूँ, so it will be, ये CD पे लगाया मैंने, सॉरी मैं वीकली पे लगाता हूँ. ये वीकली है, दिस इज माय वीकली. ये मेरा 45 वीकली लग गया. जब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंचेगी या कभी तो भी ये यहाँ पे पहुंचेगी, तो आई विल गेट अलर्ट ऑन वीकली आल्सो. सो यहाँ पे इट इज रिटन नेम वीकली अप एंगल नंबर 2184, राइट? इस तरीके से हम डेली टीडी सीडी वीकली मंथली जहां चाहे वहां पे अप और डाउन 45 लगा सकते हैं. अगर हम पोजिशनल लॉन्ग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए अप एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए. जब आप बेचेंगे कोई स्क्रिप्ट उस वक्त आपके लिए डाउन एंगल इंपॉर्टेंट है. सो आपने खरीदा हुआ स्क्रिप्ट अगर 45 डाउन में पहुंच रहा है तो यू कैन गेट अलर्ट्स आल्सो, बट सिंपली आपके पास अभी 45 लगा के चाहिए. अब ये पर्टिकुलरली ये स्क्रिप्ट देखिए, ये हम वेंकट को पता है, हम ये ट्रैक कर रहे थे. इट टच्ड एग्जैक्टली दिस लोकेशन, देन वी चेक्ड फॉर अ रिवर्सिबल बार, वी एंटर्ड हियर.
सो मेरा एंट्री 935 का था यहाँ पे, नाउ इट इज एट दिस लेवल. सो यू कैन कैच एग्जैक्टली एट दिस लेवल्स जब 45 पर पहुंचता है. सो ये एक चीज होगी. यहाँ तक किसी को फिलहाल डाउट नहीं होगा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. अमर, नींद नाही आहे आम्हा? नाही 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 ना? सर, तिथे रिव्हर्सिबल बार आल्यावरच आपल्याला एंट्री घ्यायची आहे ना त्याने. Exactly. The strategy should be something like हमारा अगर 45 पे पहुंचा है, जैसे ये IFB है, हाँ, अगर ये 45 ये स्क्रिप्ट यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे था, हम्म, यहाँ पे था 902 में, हमको यहाँ पे अलर्ट मिल गया था ये प्लस 1D में, प्लस 1D 45 में ये पता था कि मेरा 45 यहाँ पे है करके. तो अच्छा, अगर आपको बॉटम फिशिंग करना है तो दैट इज योर रिस्क एपिटाइट. अदरवाइज अगर हम पोजिशनल और डिलीवरी बेस की बात कर रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा बॉटम फिशिंग की जरूरत नहीं, जो कि मुझे आदत है. मुझे आदत है कि मैं यहीं पे कैच करता हूँ, बट उसका जरूरत नहीं है. ठीक है ना? So if you take a reversible bar and take a confirmation from trade guider also, so that will be very beneficial. आप इसके ऊपर लॉन्ग करो तो आपको रैलीज मिलेगी. So there are n number of examples. Yesterday also I shared my portfolio in the group. कि out of 21 I have 19 positions which are in positive zone, maybe 5 to 20%. So I'll just show you. सर हाँ. इसको फिल्टर भी नहीं लगाना है क्या? डायरेक्ट एंट्री ऑन हाई ऑफ नहीं. दैट कैंडल? नहीं, बाकी की क्या जो स्ट्रैटेजीज हमारी रही है वो हमेशा यूज करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज बेटर. देखो, ड्राइव करना है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओगे, ऑलवेज बेटर. यहाँ पे बॉटम फिशिंग करोगे, अगर ये स्क्रिप्ट 45 को ओबे नहीं कर रही है तो आप आउट हो जाओगे, तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए. अदरवाइज सिंपली आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिसमें इसने रिवर्सिबल बार दिया और उसके बाद में ये काफी अच्छा रैली किया. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हीरो मोटोकॉर्प के अभी रिसेंट का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमने अभी रिसेंटली ही क्लास में पकड़ा था. HERO, हीरो मोटोकॉर्प. सी हीरो मोटोकॉर्प अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो कोई 45 नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो हम हाउ वी वेर एबल टू कैच एग्जैक्टली एट दिस लेवल. तो इसको हमने जाके वीकली में चेक किया. सी चेक द वीकली चार्ट. वीकली 45 हमने यहाँ लगाया था एंड वी गॉट हीरो मोटोकॉर्प एग्जैक्टली एट दिस लेवल. तो अभी वो वहां के ऊपर है. अब ये वीकली में 45 पहुंचा, ये हमको तो अलर्ट मिल गया था जो कि अपने को स्कैनर में मिल जाता है ड्रीम 45 में. अब यहाँ से आई एम शिफ्टिंग टू डेली, क्योंकि मैं वीकली पे कंफर्मेशन लूंगा तो स्क्रिप्ट काफी आगे बढ़ जाएगी. सो आई चेंज टू ट्रेडिंग डे. यहाँ पे देखेंगे आपको बुलिश एंगल मिल गया, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हमने लॉन्ग किया. सो नाउ द स्क्रिप्ट इज क्वाइट ओके, राइट? So this way also you can do. You can just check which script are coming to weekly 45, and then you can go to the daily and check confirmations on the basis of reversible bar or PG bar or so many. ठीक है? ये क्लियर है? सर अगर फिर हम वीकली में कंफर्मेशन लेके डेली में शिफ्ट हो रहे हैं तो डेली में वो 45 के नियर अबाउट होनी चाहिए या फिर उसके नीचे भी रही तो चलेगा? देखो, नॉर्मली क्या होगा कि आवर स्केलिंग इज सच दैट कि इफ द स्क्रिप इज एट 45 वीकली, इट कुड बी एट 1/2 एंगल ऑफ डेली. इट कुड बी. बराबर है? हाँ. तो नॉर्मली ये नहीं होगा कि वीकली में 45 है और डेली में भी 45, ऐसा नहीं होगा. हाँ, वैसा नहीं होगा. ठीक है? हाँ, ठीक है. सो अभी मैं इसको स्कैन कैसे करना है वो बता देता हूँ. सो फर्स्ट पार्ट इज, आई होप देखो थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा तो ऊपर से जाने नहीं, दो. हाँ ठीक है. सो दैट इज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मेरा थोड़ा लैंग्वेज, क्योंकि वी आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स तो थोड़ा सा इश्यू होगा, बट वो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. सो मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी अगर आप समझ रहे हो तो सफिशिएंट है. सो हमारा मेन मोटो ये था कि हमारे पास अब तक के, जैसे स्पेसिफिकली मैं अमर से साथ या शिवांगी को बता रहा हूँ कि हम 45 लगा रहे थे. अब तक के 45 लगाते थे 50 जगह पे, और होता क्या था, स्क्रिप्ट 45 पे आके चली जाती थी, भाग जाती थी, और हम 6 महीने बाद देखते थे, बोलते थे कि क्या सही भाग गया वहां से. अब प्रॉब्लम ये था कि अब अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स, हाउ कैन आई चेक एवरी सिंगल स्क्रिप्ट फॉर 45? दैट इज वेरी टफ पार्ट. आपको हर स्क्रिप्ट यहाँ से ओपन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा 45 पे पहुंचा है, तो दो तो दिन निकल जाएगा. बराबर है? सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट.
यहाँ पे आपको क्लिक करना है. See, process is that you have updated charts. You have updated charts. Now you just go to this. Okay. I can even show you what could be the entry on Monday and onward. Right? So यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करना है, जनरेट का बटन क्लिक किया. My all charts are updated right now. My charts are updated. So now I want the scripts which are at daily 45. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अमर देखना यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैंने कि मुझे सिर्फ डेली के 45 चाहिए, तो डेली ओनली अप 45 चाहिए. मुझे डेली में ओनली अप 45 में कौन सा स्क्रिप्ट पहुंचा है वो चाहिए. नाउ आई हैव प्रेस दिस डिस्प्ले बटन. तो इसको थोड़ा सा स्कैनिंग टाइम लगेगा. राइट. अब ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव अप्लाइड 45 डिग्री एंगल ऑन 514 स्क्रिप्ट्स ऑन डेली, वीकली, मंथली. तो क्या होगा कि एटलीस्ट डेली, वीकली, मंथली में कोई भी पहुंचेगा तो ऑलरेडी आएगा. इफ यू वांट टू ऐड मोर स्क्रिप्ट्स यू कैन ऐड, यू विल गेट अनदर एंट्रीज. बट 500 चार्ट्स प्लॉट करना, उसके बाद में प्रॉपर्ली लगाना, ये काम के लिए आई स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पूरा लगाते हैं. नाउ दैट इज एटलीस्ट रेडी, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 months. राइट. तो आई हैव गॉट दिस डिस्प्ले. राइट. अब यहाँ पे जैसे ये जो मैसेज आ रहा है ERR मींस ये स्क्रिप्ट एग्जैक्टली टच है 45 पे. जस्ट क्लिक, ये देखिए लेफ्ट साइड में ये चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन करना है और चेक करना है मैन्युअली वेदर इट हैज एग्जैक्टली टच्ड और नॉट. सी देख, यहाँ पे कल एग्जैक्टली टच किया हुआ है बट ऑलरेडी इट हैज वायलेटेड, सो आई डोंट वांट दिस स्क्रिप्ट. आई वांट एग्जैक्टली टच एंड गो स्क्रिप्ट. सो लेट अस फॉरगेट दिस स्क्रिप्ट. नाउ लेट्स मूव अहेड. तो अभी आगे बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है मैं बता रहा हूँ. फिर से मैं पैसे एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने क्लोज किया अननेसेसरी. मैं जस्ट आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ. 45 ओपन, क्लिक जनरेट. I clicked on daily. I clicked on only 45 display. Now my list ready. Let me check FDC. इसका स्कैनिंग खत्म हुआ कैसा पता चलेगा? क्या बोले? इसका स्कैनिंग खत्म हो गया है कैसा पता चलेगा? ये जो ऐसा वाइब्रेट कर रहा है ना ऐसा बीच बीच में, वो बंद हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे कैसा ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ये ब्लिंकिंग बंद हो गया अभी. ओके. Now you can click FDC. FDC CD is at 45. See, this is FDC CD. It is at 45. Exactly. Again, it has violated it is little bit. So let's have next. अब मुझे next script देखना है. अमर, अब ध्यान रख. अब मुझे एक एक स्क्रिप्ट चेक नहीं करना है, मुझे फास्ट चेक करना है क्योंकि ये मुझे एकदम अपीलिंग नहीं लग रहा है. सो लेट इट बी. मैं 45 पे गया, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन लगाया है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी. ये बंद हो गया. अभी ये वोल्टास मैंने आ गया. वोल्टास में script is at 45 but it has already violated 45. I don't want, so मेरे लिए next. So I don't want to go into the depth. Now the Jagran is at 45. See, this is at 45. Again it has violated, so let it be. इस तरीके से हम next करके आगे बढ़ेंगे. अब ये देखो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दिख रही है JT के something. I don't want to read the name. So it is at 45, right? ये हमको मिल गए. यहाँ पे इस तरीके से हम नेक्स्ट करते देखेंगे और अपॉर्चुनिटी देखेंगे कहाँ पे हमको मिल रहा है. ये एडिशनल 45 है अगेन. एंड दोज एंगल्स व्हिच यू फील आर नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट डिलीट. आपको जैसे एक आधा लग रहा है कि ये अभी ये 45 ये कौन सा है PFC का, आई डोंट वांट दिस 45 हियर. सो आई कैन व्हाट आई कैन डू, I can just delete this 45 from this layer section. Trim 45 I don't want on this script. I have deleted. So next time it will not show me PFC. So let's go to EID पे आ रही. अगर हमको ये एकादा 45 डिलीट करना है सिर्फ एक ही एंगल 45. एक सिंगल एंगल डिलीट नहीं होगा. अगर सिंगल एंगल डिलीट करना है तो जस्ट ओपन दिस एंड यू कैन क्लिक हियर. सेम आई डोंट वांट जागरण, सो आई कैन क्लिक हियर. Only 227 number angle will be deleted from the database, not from the chart. So I have deleted this from database. Now I can delete manually from the chart. Okay. Right? So this way huge list. इसमें अभी 2x1 पे अगर पहुंचती है कोई स्क्रिप्ट तो आप you can just sort here. जैसा I'll show you क्योंकि 1x2 is also important. Let it scan it completely.
So I have found 1453 records. यहाँ पे नंबरिंग भी आ रही है आपको, कितने रिकॉर्ड्स आपको मिले. Taking huge time. सॉरी, इसमें क्या होता है, मैंने डिलीट किया तो पूरे स्कैन है, तो लेट इट बी. मैं सिर्फ इसको क्लिक कर रहा हूँ. मैं वीकली पे आपको दिखा देता हूँ कि अपना टाइम बचाने के लिए. वीकली में मुझे ओनली अब चाहिए एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट. सो कम स्क्रिप्ट आएंगे ऑन द 504 records. So these are the scripts which are at 45. ITC is 45 degree on weekly. Gold bounced from exactly 45 degree from weekly. अभी यहाँ पे देखो, मुझे ये आगे पहला जो परसेंटेज डिफरेंस है ये 1/1 है. अब देखो ना अमर, यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सॉर्ट कर सकता हूँ कि which script is on 1/2. कहाँ से बस वो कॉलम के टॉप को क्लिक करना है. देखो मैंने किया, अभी मैं फिर से करता हूँ, रुकना. राइट, अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे. तो नाउ मिधानी इज एग्जैक्टली ऑन वीकली 45. ठीक है, ये जो परसेंटेज है सॉर्ट आउट हुए हैं. आपका 40 आपका 1/2 कितना दूर है इसके लिए. तो 1/2 पे भी अगर आपका स्लिप आया हुआ है तो यहाँ पे जैसे ये मिधानी है, मैंने मिधानी यहाँ पे किया. मिधानी अगर मैं वीकली चार्ट ले रहा हूँ तो इट विल बी एट 1/2. यहाँ पे प्रॉपर नहीं है वो, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन. बट अदरवाइज आपको ये 1/2 में मिलेगी. काफी सारी स्क्रिप्ट्स मिली इसमें. आई थिंक IOC वगैरह हमको 1/2 में मिला. तो वो आप ट्रायल करिए आपके एंड पे. तो वो एक पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट क्लिक सेव एज CSV. सो ऑल दिस लिस्ट विल बी सेव्ड इन एक्सेल फॉर CSV फॉर्मेट. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं. इफ यू वांट एनी सिंगल स्क्रिप्ट यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दैट सिंगल स्क्रिप्ट and you can just click display. So only single script will be displayed. But major fun is having multiple scripts so that सब स्क्रिप्ट वहां पहुंचा है तो you can catch it, right? तो यहाँ पे अभी मैं I don't want to show you examples. You can check those on videos कि हमने किस तरीके से स्क्रिप्ट पकड़े थे. I think कोटक एक अभी हमने recently पकड़ा. तो कोटक was on weekly 45. I hope so. कोटक. See, Kotak was at weekly 45, right? So ये कोटक मिला था हमको. Then Bombay Dyeing also was at 45. RBL Bank was at monthly 45. ऐसे बहुत सारे हैं. अभी मेरे सामने मेरी पे 21 पोजीशंस है. वो सब मैं आपको इवन एक ग्लेनमार्क, इंडियन बैंक, भेल भी था सर. एक भेल कौन सा था? भेल भी था. भेल वाज आल्सो ऑन वीकली 45. भेल है. See, this is a 1/2 angle on daily, but I think it was on 45 weekly. राइट, यहाँ पे शायद हम उसको एंगल ड्रॉ करें तो 45 आएगा. क्या क्या चीजें चेक की. ये देखिए, इट वाज ऑलमोस्ट एट 45 डिग्री लेवल. दिख रहा है. तो इट वाज वीकली 45. सो वी चेंज टू डेली एंड डेली में फिर हम यहाँ पे उसको कैच कर पाए डेली. राइट, दैट वे यू कैन चूज. सो वीकली में भी चेक कर सकते हो, डेली में भी चेक कर सकते हो. तो इट कुड बी गुड थिंग. यहाँ पे काफी सारी एंट्रीज, यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए तो उसके लिए एडिशनल कुछ चीजें बता देता हूँ. अमर, ध्यान है आपका? चार्ट्स के बैकअप के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. यहाँ पे यू कैन जस्ट क्लिक हियर. ये ध्यान में रखिए कि आपके पूरे चार्ट्स बंद है. पहले मैं इतना ही बंद कर लेता हूँ चार्ट्स. ये बैकअप आप वीकली फोर्टनाइट भी एक बार जरूर लो, क्योंकि अदरवाइज फिर से मुझे चार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे आपके. अभी डाउनलोडर में ऑलरेडी वी हैव दैट ऑप्शन कि अगर आप ये चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे डाउनलोडर को क्लिक करेंगे. ये आपके काम का नहीं है डिबू फिलहाल के लिए, बट जस्ट ये बाकी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ. सी, वी हैव दिस ऑप्शन डाउनलोड चार्ट्स. यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया लिखा क्योंकि बाहर के चार्ट्स
उन्होंने बाहर साउथ अफ्रीका में या बाकी जगह पे उन्होंने नहीं करना चाहिए करके यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने इंडिया किया है, ताकि आपके चार्ट्स में प्रॉब्लम आता है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस चार्ट्स, ये ऑप्शन है। यू कैन अपडेट योर फॉर्च्यून प्लस बाय दिस आइकॉन, अपडेट फॉर्च्यून प्लस आपका लेटेस्ट वर्जन पे रहेगा फॉर्च्यून प्लस, जो भी कुछ नए चेंजेस आते हैं इसमें, राइट। सो ये एक चीज है इसमें। आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट किया है बैकअप, क्लिक करना है, आपका बैकअप रहेगा, आपकी स्टडी जो रहेगी वो स्टोर्ड रहेगी, बैकअप सक्सेसफुल, ओके यू कैन जस्ट क्लोज। तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन रिप्लेस योर ओल्ड चार्ट्स। कहीं पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं ये रिस्टोर बैकअप करूंगा तो मेरा पूरा ने चार्ट रिप्लेस हो जाते हैं। सो आई नीड नॉट कीप ट्रैक ऑफ मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, ये एक चीज यहाँ पे। हाँ, अनदर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज एरर हैंडलर। ये एरर हैंडलर ध्यान रखना है हमारा, यहाँ पे एरर हैंडलर है हमारा, कभी डेटा करप्ट होता है, कुछ इश्यूज है तो यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, ये रिपेयर के बटन को दबाओ, रिपेयर दबाया मैंने, सॉफ्टवेयर विल क्लोज एंड रीस्टार्ट, योर डेटा विल बी ओके। ये सब होने के बाद में आपका डेटा रेक्टिफाई करके आएगा। तो ये चीजें है इसमें जो नहीं थी, और नए बहुत सारी चीजें, तो पूरा शाम हो जाएगी, ऑलरेडी इट्स 1 आवर। तो दूसरे कुछ चीजों में जो एडिशनल था वो अमर को मैं क्लिक फास्ट करके बता देता हूँ। अमर थोड़ा ध्यान रखना, मैं फास्ट में जाता हूँ अभी, फास्ट फॉरवर्ड में मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके स्कैनर्स है। अगर आपने एक आधी स्क्रिप्ट में ट्रायंगल लगाया, फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ डेवो, सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। सपोज ये मेरा स्क्रिप्ट है, अभी मुझे यहाँ ट्रायंगल लगाना है, सपोज मैंने ट्रायंगल लगाना है, क्लिक किया, मैंने ये टॉप लिया और मैंने ये बॉटम लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टोर हो जाए तो मैंने यस बोलना है और ओके किया। सी नाउ व्हाट विल हैपन, अमर, यहाँ पे ये एक क्यूब रूट लेवल है, एज यू नो दिस इज अ क्यूब रूट लेवल एंड दिस इज योर टाइमिंग। सो यू हैव टू थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू अप्लाई ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल लगाया तो आपको पता चाहिए कि भैया ये स्क्रिप्ट यहाँ पहुंची तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, और या यहाँ पहुंची तो इंफॉर्मेशन चाहिए। सो नाउ यू अप्लाइड योर ट्रायंगल, you can just go to this part, this is the scanner। मैं सिंगल स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये है HDFC लाइफ, HDFC लाइफ क्यों नहीं है, HDFC लाइफ तो था यार, यस दिस इज HDFC लाइफ। और मैंने इसको सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, डिस्प्ले। सी ये जो मैंने अभी ट्रायंगल लगाया था, इसका ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है, ये यहाँ पे लिख के आता है, बराबर है। अब ये 35 दिन हो चुके हैं, अभी आपने कहीं और लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं और एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मुझे ये पॉइंट लग रहा है कि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स को लगाया, मैंने यस बोला। तो ये का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका डेट ये है, मे बी दिस रैली विल एंड हियर। तो आपको ये यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, जनरेट, ये था HDFC लाइफ, मैं सिंगल बता रहा हूँ HDFC लाइफ, और मैंने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल पर डिस्प्ले किया। सी नाउ कैन सी इक्विलैटरल ट्रायंगल 118 नंबर पॉइंट 1, दिस पॉइंट इज 6 डेज अहेड, 6 दिन के बाद यहाँ पे कुछ होने का प्रोबेबिलिटी हो गया, बढ़ गया, बराबर है। सिमिलरली ये SR लेवल मींस क्यूब रूट लेवल है, ठीक है। सो करंट प्राइस से SR लेवल कितना दूर है इसका परसेंटेज है, तो यू कैन चेक आल्सो कि आपका क्यूब रूट लेवल के पास में ट्रायंगल आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप सर्कल, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाइलो स्क्वायर, स्क्वायर एंगल, पेंटागन, ये सब बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर आप लगाते हो जहां पे भी चाहिए, तो उसके बाद में आपकी वो स्क्रिप्ट्स कौन से दिन में डायरेक्शन चेंज करेगी, इसके लिए आप यहाँ पे जनरल दबाएंगे और डिस्प्ले दबाएंगे, तो आपके पास में ये पूरा शीट रेडी हो जाएगी। यहाँ पे अभी कौन सी स्क्रिप्ट मेरे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रही है, आई कैन जस्ट सॉर्ट, यहाँ पे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से डबल सॉर्ट करता हूँ। सी HDFC लाइफ मैंने अभी लगाया है, तो मेरा HDFC लाइफ का इक्विलैटरल ट्रायंगल लेवल इज 6 डेज अहेड, राइट। अब इसी वक्त सपोज मैंने सर्कल लगाना है, सर्कल लगा दिया मैंने, ये टॉप पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ के स्टडीज में ऐड कर दिया। तो इसके जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सब चीजें लिख के आती है HDFC लाइफ। तो अभी आप देखेंगे
मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया था, ये वाला सर्कल फर्स्ट लाइन में, तो सर्कल के 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। अमर हाँ स्क्रीन पे देखो, मैंने एक सर्कल लगाया, तो एक कोई भी सर्कल 3 टाइप से लग सकता है। जैसे कि ये सर्कल मैंने यहाँ लगाया, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे स्नाइप करके बताता हूँ, थोड़ा फास्ट बताता हूँ। आई टेक नेक्स्ट 5-10 मिनट्स ओनली। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों मैंने सर्कल एज ए सर्कल के पॉइंट चूज किया, तो आई कैन चूज दिस एज ए रेडियस एज वेल एज डायमीटर। तो इफ आई चूज दिस एज ए डायमीटर, दिस इज माय सर्कल, दिख रहा है ये सर्कल का पॉइंट। हाँ उसी वक्त मैं ये इसको रेडियस पकड़ू तो ये सर्कल होगा, तो ये सर्कल का पॉइंट ये आया, बराबर है। उसी वक्त अगर मैं ये सेंटर पकड़ू और इसको रेडियस पकड़ू तो ये पॉइंट आया, हाँ बराबर। सो बाय ड्राइंग अ सर्कल आई हैव 3 पॉइंट्स, सो दीज आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। जो भी 0 लेवल पे आएगा, यू कैन जस्ट चेक कि अपना स्क्रिप्ट का एंड आया है या वहां से रैली चालू होने वाली है, ये चीज अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। So you have option here, multiple circle, equilateral, isosceles, square angle, square, halo, pentagon, all this basic geometrical figures जो कि आपने लगाने के बाद में आप स्कैन कर सकते हो, तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे इन एडवांस की कौन से दिन से उसने रैली चालू करना चाहिए, राइट राइट। अब भाई साहब हाँ तो बोलिए सब लोग, मेरा छाती है बोल बोल के, ठीक है ना, क्लियर ना यहाँ तक, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, अगर आप, मैं यहाँ पे अभी आप एट रैंडम लगा रहा हूँ सब चीजें जस्ट डेमो देने के लिए, यहाँ पे 2 चीज लगाया मैंने, यस ओके। सो दिस इज माय स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। ये स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज में मुझे सर्कल का ये पॉइंट और स्क्वायर का ये पॉइंट तो मुझे एडवांस में पता होना चाहिए। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू, यानी कि देवू के लिए जस्ट बता दो, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज कॉन्सेप्ट है, डिटेलिंग में कभी बात में जाएंगे। बट इफ दिस इज माय रेंज, if I create a circle, a square around this, means I have converted this range. This is the price. I converted this price into square. So this is termed as a squaring of range. So what happens whenever this rally goes and then it goes sideways, from this date it starts rallying again, or from this date it starts rallying again. So we have whenever you have one-sided rally, so whenever something like this happens, square आता है या circle आता है, you find an acceleration in the range rally. So you can just apply this wherever you want and you have all this really available. So यहाँ पे एक बार मैं फास्ट में बता रहा हूँ, शिवंगी अमर ध्यान रखना, this is a square point, ये square point, then this is a circle point, then these are 2x1, 1x2, 1x2 angles inside, जो भी अंदर के स्क्वायर के है वो है, इसको अभी फिलहाल इंपॉर्टेंस मत देना। स्क्वायर सर्कल इज मोर देन सफिशिएंट राइट नाउ। तो स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज मेरा कौन से स्क्रिप्ट का हो रहा है, आई कैन जस्ट क्लिक हियर, आई कैन डबल क्लिक, सो आई नो टाटा पावर देयर इज अ स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज, राइट। बट कहाँ पे हो रहा है, मंथली में दिख रहा है, मंथली एमओ, while weekly squaring of range already completed 5 weeks earlier. About India trading day, 5 days afterwards, it will give you a squaring of range, maybe squaring of range number 50. Let me just check. देखिए मैंने about लगाया, squaring of range 5 दिन के बाद में खत्म हो रहा है, तो I already got. Suppose मेरे पास holding है तो I can just check कि यहाँ कहीं रिवर्सल ना मिले, right? चार्ट में माइनस यानी होने वाला है, माइनस माइनस स्क्वायर का बाउंड्री आके ऑलरेडी एक दिन हो चुका है। अच्छा, ये 5 प्लस में आने का, देखो अभी ये जो है 5 डेज दिखा रहा है अबाउट, हाँ बराबर। सो मेरा स्क्वायर कंप्लीट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हाँ बराबर है। सो हाँ। आज अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितने दिन बाद स्क्वायर कंप्लीट होने वाला है, तो ये आपको मुझे डेट मिल गया, ये देखिए 5 दिन, बराबर है। सो मुझे यहाँ पे एडवांस में पता चल रहा है कि कोई स्क्रिप्ट, अभी ये जैसे HDFC 6 दिन बाकी है, अजंता फार्मा 10 डेज बाकी है, MRF 11 डेज बाकी है, बराबर। तो ये आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट मिलेगा, राइट। ये आज बता रहा हूँ बट ऑप्शन नहीं है, स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज हो गया। ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे, ये है डिमांड सप्लाई एंड गैप प्लॉटर। तो अगर आपका स्क्रिप्ट में कहीं गैप्स है तो यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे गैप्स, जनरेट डिस्प्ले, कल्पतरु पावर, ठीक है। ये कल्पतरु पावर में ट्रेडिंग डे में 151 नंबर की गैप है, मैं कल्पतरु पावर को क्लिक करता हूँ, लेट्स चेक फॉर एग्जांपल, कल्पतरु पावर
अगर ये 151 नंबर की गैप है तो ये स्क्रिप्ट जब भी यहाँ पे आती है आपको मिलेगी, यहाँ पे इट हैज ब्रोकन एंड केम बैक अगेन, सो यू कैन चेक इट चार्ट. So whenever a Kalpataru power comes back to this gap zone, it will intimate you in here, in this scanner, right? So यहाँ पे आप जाके जिसका जो भी क्लोज है गैप्स के या डिमांड जोन के या सप्लाई जोन के, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा है. So यहाँ पे you can just click percentage difference, Valinty, ORG something, TD, you are at gap up. Gap up यहाँ पे हुआ था, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे है. Castrol India is at gap up this zone. So let's check a Castrol. Castrol में भी ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बट यहाँ पे अगर आता है तो आपको इंटीमेशन मिलेगा वो. तो यहाँ पे आई थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाट आई मीन टू से. यहाँ पे आप गैप अप, गैप डाउन, डिमांड जोन, सप्लाई, ये सब मार्क करके रखेंगे एंड यू कैन जस्ट स्कैन. कोई भी स्क्रिप्ट आपकी गैप में पहुंच रही है तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा. तो this is mainly about the scanners. So मैंने I think I explained in basic, then squaring of range, demand supply zone and 45-degree scanner. Then again there is an additional one scanner. Suppose this is my Fibonacci scanner and I have my script somewhere, maybe suppose मैं यहाँ से Fibonacci लगा रहा हूँ. Fibonacci मैंने लगाया यहाँ से और मैंने लगाया यहाँ पे. I have to add this script. Okay, so I have added. Now the script is at maybe just 50% रिट्रेसमेंट. तो आपको ये स्कैनर में अगर जाएंगे, जनरेट करेंगे और ये स्क्रिप्ट को देखेंगे तो आपको वो स्क्रिप्ट यहाँ पे डिस्प्ले में दिख जाएगी कि आपका स्क्रिप्ट वहां पे पहुंचा हुआ है. मैं फुल डिस्प्ले कर रहा हूँ. नाउ आई नो मेरा कौन सा स्क्रिप्ट 61.8 रिट्रेसमेंट पे आया हुआ है, राइट? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरा 61.8 पे पहुंचा हुआ है. सो आई कैन जस्ट क्लिक LIC हाउसिंग फाइनेंस. मेरे ख्याल से सपोज ये पुराना वाला लगा होगा तो वहां यहाँ पे पहुंचा होगा तो भी दिखाएगा, राइट? तो कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे अभी ये कैस्ट्रॉल दिख रहा है, ये अभी अपन ने लगा तो इट इज 38.2, राइट? अभी अपन ने अभी आपके सामने लगाया. तो कैस्ट्रॉल इज एट 38.2 रिट्रेसमेंट. तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा. तो इफ यू अप्लाई मल्टीपल फिबोनाची इन एडवांस, यहाँ से यहाँ लगा के रख दिए तो यहाँ पे आपका काम सिर्फ स्कैनर दबाने का है कि जनरेट डिस्प्ले. आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट आपके टेंटेटिव लोकेशंस पे पहुंच रही है तो यहाँ पे वो मिल जाएगा. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, जो क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पे अप्लाई नहीं किया. यू कैन डू इट मैन्युअली आपने लगा के रख दिया कि भाई मुझे अभी ये स्क्रिप्ट, सपोज ये स्क्रिप्ट ये टॉप है, ये लो है, और वो अगर ऊपर पहुंचती है 50%, आई शुड गेट इंटीमेशन. सपोज आई हैव अप्लाइड फिबोनाची समवेयर लाइक दिस. सो अभी अगर ये मेरा स्क्रिप्ट यहाँ पहुंचा तो भी इंटीमेशन मिलेगा, यहाँ पहुंचा तो इंटीमेशन मिलेगा, यहाँ पहुंचा तो इंटीमेशन मिलेगा. सो व्हाटएवर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यू कैन गेट इट रेडीमेड. तो ये मेनली द स्कैनर्स, ये स्कैनर्स का पार्ट है. और बाकी बहुत डिमांड सप्लाई जोन कहाँ से लगाना है? डिमांड सप्लाई जोन अगर मुझे लगाना है, सपोज से I'll apply somewhere. Suppose this is my demand zone. Okay, I'll say this is my demand zone. So I can just click here. You click to the lowest point. You click to whatever point, माने कोई कैंडल में either this or this. मैंने यहाँ पे लगाया. So now my demand zone is fixed. यहाँ पे लिख के आएगा. यहाँ पे मैं इसको ओवरलैप हुआ है, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ. यहाँ पे लिख के आ जाएगा. यहाँ पे कहाँ पे गया भाई? यहाँ पे लिख के आएगा. अभी ये ओवरलैप हुआ है, बट कैस्ट्रॉल का डिमांड जोन यहाँ पे करके लिख के आएगा. एंड इट विल बी स्टोर्ड. सो व्हेनेवर दिस स्क्रिप्ट कम्स बैक टू दिस जोन, जैसे हमने अभी एक्साइड आया था इसलिए हमको याद है. आई विल शो यू एक्साइड. एक्साइड में देखिए, ये देखिए, ये हमने इसमें डिमांड जोन लगा के रखा था, एक्साइड डिमांड जोन. एक्साइड जब डिमांड जोन में यहाँ पहुंचा तो वी गॉट इंटीमेशन हियर. ये डिमांड जोन स्कैनर में देखिए, शायद यहाँ पे स्टोर्ड भी होगा, आई डोंट नो. सॉरी, देखिए एक्साइड, राइट? ये एक्साइड जब यहाँ पे पहुंचा ये लोकेशन पे, तो वी गॉट दिस डिफरेंस एज 0, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0. तो हमको पता है डिमांड जोन में ये स्क्रिप्ट आई. सी द ह्यूज रैली आफ्टरवर्ड्स एक्साइड में. तो ये सब चीजें हमारे मिस होती है, वो सब क्योंकि मैन्युअली देखना बड़ा डिफिकल्ट है. वी नीड स्कैनर ऑटोमेशन. वो सब चीजें इसमें अभी एडिशनली कर पाए, क्योंकि पहले बड़ा डिफिकल्ट था कि ज्योमेट्रिकल चीजों को स्कैनर कैसे बनाए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल स्कैनर्स भी नो जितने चाहिए बना सकते हैं स्कैनर्स, क्योंकि काफी इजी होता है उसको बनाना. इसमें थोड़ा डिफिकल्टी था, तो ये बन गया. तो यू हैव एन नंबर ऑफ स्कैनर्स राइट नाउ. बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे नए चीजें जो बता पाऊंगा, पर अभी मुझे मेरा लंच
टाइम हो गया तो आई थिंक खाना भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चंस, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस नाउ। सो क्योंकि अभी मैं पूरा देखो आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग क्योंकि इट विल टेक नेक्स्ट 1 वीक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, सो दैट इज वेरी टफ। सो ये थोड़ा थोड़ा बता दिया, यू हैव टू डू ट्रायल एरर। बहुत सारा गड़बड़ हो गया, बहुत सारी तकलीफ होगी, आपको गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, आने दो, पर उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर एक जन जो मिला है पहले बहुत गुस्सा किया है मेरे ऊपर, क्योंकि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना है। बट सी हमको अगर कुछ अचीव करना है तो सिंपल तो रहेगा नहीं, तो वो चीज है तो किए। सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द अमर किनीकर आल्सो, ही इज विथ मी फ्रॉम लास्ट 12 to 13 years। सो उन्होंने काफी बुक्स भी प्रोवाइड किए, बहुत सारी हेल्प है। आई कांट यानी कि कैसा है वो सामने तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो नहीं रहता तो आई वुड हैव उनका तारीफ किया रहता, नहीं तो बोलेगे मुंह के ऊपर तारीफ कर रहा है। तो चलिए आपके क्वेश्चंस, नेक्स्ट 5 मिनट्स, आपको कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लेते हैं सब लोग, एनीबॉडी कैन आस्क। हाँ यस यस शिवांगी। हाँ नहीं सर, अभी डाउट तो नहीं है। मैं अभी निफ्टी 50 के जो भी स्क्रिप्ट है उस पे 45 डिमांड सप्लाई ये सब कुछ लगा के फिर मैं ये करूंगी, यानी स्टडी उसका। हाँ और देखो ऑलरेडी निफ्टी का भी आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे तो मोस्टली 45 लगा के रेडी है। जैसे कि देखिए अभी मैंने एट रैंडम ओपन किया, 45 रेडी है, बराबर। तो अब आपका काम क्या बनता है कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, हमने देखते कि भाई ये तो शायद काम का नहीं है, तो आई कैन डिलीट, और इफ यू वांट यू कैन अप्लाई फ्रेश 45। ये यहाँ मुझे ये गलत लग रहा है तो आप लगा, अगर ये मुझे एग्जिस्टिंग डिलीट करना है तो ये लेयर का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करके 45 को डिलीट करना है, तो वो डेटाबेस से भी जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ मैन्युअली यहाँ से मत डिलीट करिए, you delete from this layer option, it will be deleted from database, तो आपको फिर वो बार बार दिखाएगा नहीं। So if you feel कि this is wrong, so then it's okay, you can delete, otherwise आपको लगता है कि मुझे नया कुछ लगाना, सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा के रखा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट, तो आई कैन जस्ट अप्लाई हियर, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ सर, ये जो बड़े बड़े जो स्विंग है उसी को लगाना है या फिर हम एक छोटी रैली भी दिखती है वहां पे भी लगा सकते हैं, यानी डेली में? सभी चीजें मैं बता रहा हूँ इन शॉर्ट, सभी चीजें में टेक्निकली या अपन चार्ट जब देखते हैं तो एज अबव सो बिलो वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप लार्जर व्यू से देखोगे तो भी वही रहेगा, स्मॉलर व्यू से देखोगे तो भी वही रहेगा। सपोज मुझे 45 ये अच्छा लग रहा था, पर आपको लगा कि ये भी तो एक स्विंग है, यहाँ लगा दिया। अब देबू को लग रहा है कि भाई नहीं यार ये भी तो अच्छा डाउनफॉल था, तो लेट मी अप्लाई हियर। अब आप जितना माइक्रो जाओगे उतना रिजल्ट्स में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, तो मेजर को लगाओगे तो मेजर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको हीरो मोटोकॉर्प का बताया था, हीरो मोटोकॉर्प में वीकली में 45 आया था वो, अभी तो कहाँ गया जस्ट अ सेकंड, हीरो, यानी हम ऑल टाइम वाला वो वाला नहीं ना, हम बीच में भी लगा सकते हैं। सिर्फ स्विंग जो है वो थोड़ा हीरो अच्छा मोटोकॉर्प ऑल टाइम, तो अगर इधर है तो मेरे को इधर का फायदा नहीं कुछ, ऑलरेडी वो गया। अब मुझे करंट में देखना है क्या हो रहा है, भैया यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कहीं लगाया नहीं था, वीकली पे लगाया था। अभी मुझे लगता है कि ये स्लिप ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आई तो भी मुझे पता होना चाहिए, सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट। अब ये स्क्रिप्ट जब ऊपर जाएगी और फिर से नीचे यहाँ करेगी तो मेरे को मिलेगी। सो दिस इज योर जॉब एंड दिस इज ऑनगोइंग जॉब। जितना ज्यादा अच्छे तरीके के मार के रखेंगे अपन 45, उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब ये हमने 2 महीने पहले मैंने ये हीरो मोटो लगाया था, 2 महीना पहले ये जब लगाया था तो मुझे लगा कि भाई ये जब भी यहाँ आएगा मुझे मिलना चाहिए। सो आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि मैं तो तब तक डुल चुका हूँ, मुझे जब यहाँ पे मिला तब मैंने उसको कैच किया प्रॉपर्ली, एग्जैक्टली एट दैट लोकेशन। रिजल्ट्स तो वंडरफुल है। आप इवन वेंकट इज देयर, वेंकट अभी रिसेंटली वेंकट ज्वाइन, तो उन्होंने भी 45 के रिजल्ट दिख रहे हैं, वो ऑसम है नहीं किसी भी, इसलिए नहीं कि अपना काम है, अपना बच्चा तो अच्छा ही दिखता है, वो बात नहीं है, बट रियली इसीलिए हमने उसका नाम भी ड्रीम 45 रखा। दिस वाज माय ड्रीम कि भाई इतना, हम एक जमाने में आमिर खान बोलते थे, मुझे अभी अनुपम खेर बोलते हैं लोग, तो वो हम ऐसे चेंज क्यों हुए, तो ये सब करते करते चेंज हो गए, तो उसका हम सबको बेनिफिट मिल जाएगा अभी, होप सो। 45 इज नाइस वन, तो उसमें जितनी जगह पे लगाओगे उतना बेटर है। लास्ट वीक आई थिंक RBL बैंक, आई थिंक वेंकट ने दिया था RBL बैंक,
it was at monthly 45. I forgot that actually, but CBL बैंक हमें वेंकट ने दिखाया कि भाई ये 40, ये देखिए मंथली में it reached 45. अब ये मंथली में 45 रीच किया तो हमने गए डेली पे उसको। अब डेली पे जब गए तो हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये डाउन में बराबर पहुंचा हुआ है, यहाँ डिमांड जोन है, वॉट एवर, सो वी वर एबल टू कैच इट। ये रिवर्सिबल बार मिला 164 पे, मेरा भी बाइंग है। तो ये अभी वेंकट यहाँ पे रेडार पे आए, थोड़ा रिस्क रहे यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। हाँ सर, बट हाँ सर। अगर नीचे भी आता तो प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन इज क्वाइट नाइस। सो इफ यू वांट टू एग्जिट एंड री एंटर, तो टुडे इज 9th day, this was the 8th day, so probably you can shift your ABSS to this place also, so this could be 8 up setup, whatever. So okay, that is another part, but it is a monthly 45, so that is a nice one. तो आप जितना लगाओगे उतना रिजल्ट्स अपने यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है वो। तो स्कैनर्स तो बहुत है, अभी सिर्फ बचा है कि हमको रेडी भी बहुत है स्टफ, क्योंकि 45 मैंने पिछले 1-1.5 महीने में सब जगह पे लगाया है, तो उसका एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। क्या क्या रहता है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में बोल रहे थे कि आप रेडीमेड मत लगा के दो, सो डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बढ़ जाती है अननेसली कि सर लगा के दे रहे रेडीमेड, तो वही अच्छा रहेगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट, मैं चाहता था कि उसको हम टेस्टिंग मिले सब। अभी मैंने भी अच्छे पैसे निकाले, तो थोड़ा अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लीना ने भी अच्छे निकाले, काफी लोगों ने अच्छे, जोशी सर ने अच्छे पैसे निकाले, तो क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, हम जब काम कर रहे 4 पैसे बच रहे यार, तो मजा आ रही काम करने में यार। सो तो सबको एडवांटेज मिल रहा है, तो वी आर हैप्पी। इसलिए मैंने पहले लगा के रेडी लिए, थोड़ा चस्का लगा दिया कि भैया देखो ये 45 में आपको मजा आ रही है, बट 45 इज नॉट एवरीथिंग, आपको बाकी सब चीजें तो चेक करनी पड़ती है। बट कैसा है, नए बच्चों को थोड़ा सा अच्छा दिखाना पड़ता है ना कि भैया देखो ये तो एक्सेलेंट है, यहाँ बैठोगे और फॉर्च्यून प्लस पे काम करोगे तो आप झुनझुन वाला बनोगे। बिल्कुल नहीं बनने वाले हो झुनझुन वाला, अगर आपको खुद पढ़ाई करनी है, वो तो उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। बट बहुत सारी चीजें हम ओवर द पीरियड आगे बढ़ गए। यस अमर, एनी क्वेश्चन? नहीं, ओके। है, काफी सारी चीजें तो ओके है, आई होप। तो आपके एंड से आप ट्राई करिए, कुछ इश्यू रहेगा तो फिर बैठते हैं। सो डेबू आप? यस सर। हाँ बोलो बोलो, बहुत सारी चीजें नहीं समझी होगी तो लेट इट बी। नहीं सर, बहुत बहुत कुछ है, थोड़ा टाइम लगेगा बस। टाइम लगेगा सी। मुझे बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत बताना था, सो मुझे थोड़ा फास्ट बताना पड़ा। ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 1.5 hour ऑलमोस्ट। तो आपको कैसा है, काफी सारी चीजें नई चीजें हैं, तो आपको खुद जब हाथ लगाओगे तब समझ में आएगा। तो टाइम तो लगेगा, विदाउट टाइम देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, वो तो ध्यान में रखो, सवाल ही नहीं। So if you want to make career in market, you have to give best of the best. So क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेन्स है वो बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन्स है, हमारे से जो पैसे लेके जाते हैं ना मार्केट में, हम जब डूबते हैं तो पैसा लेके जाना वाला बहुत इंटेलिजेंट है। सो हम उससे थोड़ा आगे रहे। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमें ठेस लगेगी, गिरेगी, तकलीफ होगी, बट सी अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन लाइक टेकिंग रेडीमेड टिप्स। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। कोई कर रहा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ स्केलेबल थिंग। you have to do something scalable। तो भाई मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे हमेशा के लिए काम में। आज मेरे पास एटलीस्ट मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि व्हाट इज माय लेगेसी कि मेरे बेटे को 45 मैंने सिखा दिया तो कम से कम भूखा नहीं मरेगा भाई, खाना तो खा लेगा। लाइक दैट। सो इस तरीके से स्केलेबल चीज होना चाहिए तो मजा आती है। सो ऑफ कोर्स आई टेक क्रेडिट ऑफ ऑल द थिंग्स, बट देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व कि उनका क्रेडिट है उसमें, ये सब चीज हम यहाँ तक जो भी की है। आई एम नॉट द ओनली वन, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज तो क्लास में सीखा हूँ। नॉर्मली आई चार्ज फीस फॉर माई क्लास, बट एक्चुअली डेढ़ में मुझे कभी कभी लगता है यार क्लास सिखाते सिखाते तो खुद ही तो सीख रहा है। सो बहुत सारी चीजें मैं क्लास में ही सीखा हूँ कि लोगों को सिखाते वो क्वेश्चन रहते हैं। सो हम काफी आगे बढ़े। वेंकट भी रिसेंटली ज्वाइन किया, उनका भी स्टडी बड़ा स्ट्रांग है। ही इज पलक्कड़ कोटक बैंक में है वेंकट, तो उनका भी स्टडी अच्छा है, जितना वक्त मिलता है वो पढ़ाई करते हैं। तो जितना बेस्ट पॉसिबल है मैं भी ट्राई करता हूँ हेल्प करने का। बट मोबाइल से मुझे प्रॉब्लम है, यानी कि मोबाइल फोबिया नाम का एक डिजीज है मुझे। सो आई डोंट पिक अप माई फोन्स, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो अगर आप उसको अच्छा माने बुरा माने दैट इज अप टू यू। तो वट एवर योर इश्यूज आर, वट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मल्टीपल लोगों को सर्व करने के लिए मुझे बेटर पड़ता है। क्योंकि फोन पे एक बार बात चालू होगी तो पूछना पड़ता है भाई तबीयत कैसी है, खाना क्या खाया, ये इसका मार्केट से लेना देना होता नहीं। बट व्हाट्सएप करेंगे तो फटाफट काम हो जाता है।
सो आई एम नॉट अ गुड लुकिंग, मेरा वॉइस भी बड़ा अच्छा नहीं, तो ऑनेस्टली हम फोन पे बात करने में सेंस बनता नहीं है। थोड़ा हम फोकस रहेंगे जो भी आप। नहीं सर, वॉइस तो अच्छा है सर, क्या सर? वॉइस तो अच्छा है। अब थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो चलिए, देवू आपके end पे करते रहिए। कल मुझे एक बार मुझे रिमाइंडर दे देना, तो Sir. क्योंकि मैंने कोलकाता भेजा था। इज राजू प्रामाणिक फ्रॉम कोलकाता, जिनका कंपनी है आई स्टॉक सिस्टम्स डेटा प्रोवाइडर। तो मैंने मैसेज किया तो ही सेज इट इज अ संडे यार, आज नहीं पॉसिबल, तो आई विल एक्टिवेट टुमारो। तो कल मैं Sure, sir. मॉर्निंग में एक्टिवेट कर देता हूँ। और आप एक थोड़ा सा, मेरा मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा व्हाट्सएप कर देना कि ये रह गया, क्योंकि आपको लगेगा कि डिस्टर्ब क्यों करना, बट यू कैन जस्ट मैसेज मी, मुझे जब हाँ। वक्त मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा और एक्टिवेट कर देते। तो थोड़ा सा मुझे 10 मिनट के लिए कंप्यूटर लगेगा आपका, तब मैं आपके चार्ट्स भी अपडेट कर दूंगा 10-15 मिनट, and then you can do whatever trial error you want. Then you can have your n number of queries, you can post me, and even एक दो सेशंस हमारे लाइव, if you join for live session for your queries, it will be my pleasure, no problem at all. Sure, sir. ठीक है, तो चलिए बाय, सॉरी फॉर आपको सब लोगों को वीकेंड पे डिस्टर्ब किया, एंजॉय करिए। सुभाष सर टेक केयर, मनी की sir. तबीयत का ध्यान Yes, sir. रखिएगा। Thank you, sir. हाँ, ये सब होते रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए बाय बाय, थैंक यू। Okay, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you. Thank you.